This is the team of Optilink and iBuilding. Both the teams are here. And we are going to look at the performance for the last entire year, financial year 15-16, from April 2015 to March 2016. And the company had taken turnover growth target of what percentage? 100%. 100% target. 100%. Right. So team ने जो target लिया था turnover growth का, वो कितना लिया था? 100%. And what is the year-end achievement of the target? What is the achievement percentage? 100.79. 100.79%. That means you guys have crossed 100%. Give yourselves a very big hand. Three directors have joined us from China on a video conference call. So congratulations to all of you, including the team sitting at China right now. Mr. Piyush Dedia, Mr. Gulabchand Haria, and Mr. Vikram Nagda, and the two directors here, and the rest of the team here. Once again, the team masterclass, on behalf of the team masterclass, I would like to extend warmest congratulations to all of you. Very well done. You will all recall the moments in the last year when we were setting up the target for the 15-16 year. And in 14-15, the company had grown by 50%. And then it was contemplating what target we should take for the next year. And general consensus was that already we are on a high after a 50% growth in 14-15. So 15-16 का growth 65% से ज़्यादा target नहीं करना है. That was the general consensus in the meeting, and I had only made one suggestion, that if you can take 65% target for growth for the 15-16, then why not 100%? And it's all in the mind. And at that time, though the company accepted 100% target, but I'm sure at that time most of the team members may not have had a deep belief that it can be done. Or hesitatingly they may have accepted. And it so turns out that 1 year is over, and whatever you had undertaken, 100% growth, though in the beginning it looked Impossible. It looked impossible. It looked Impossible. or difficult or very difficult, okay? But with team efforts and with a single-minded focus on the goal, and with SCRM meetings every 15 days where we were keeping the track of the goal and what are the tasks required, including organization building, team building, strengthening the sales team, opening up of branch offices at couple of cities, etc. All these things were accomplished in the last year, and the result is all in front of us. Most of it is because of team building. So once again, a big hand for the entire team. I would ask the team sitting in China right now to Gulab bhai to say something on your 1 year journey and the 1 year experience. इधर ले लो. अच्छा sound तो आएगा. Thank you, sir. Thank you very much for motivating us and our team and taking us to the next level. Our team has put a lot of effort, but you have been pushing us and guiding us all the way in our journey. And thank you
thank you very much. And congratulations to my team. And sir, to you also, sir. Thank you. Fantastic. Thank you so much. And two operating day-to-day executive directors, Piyush and Vikram, I would like you to share your journey. How did you make it possible? Hello? Hello. Yeah, Vicky. It used to be a completely impossible task at the beginning when we decided on that. But slowly and steadily, the confidence building and the team also supported us in a fantastic manner. The entire team, every department, each and every department. And of course, the management is always there to support us behind. And of course, sir, thanks are done to you. You have been always our guiding source. Every 15 days, we were always on track what to do, what not to do. So, thanks to everyone. Great. We will have Piyush share his experiences from China. Congratulations to all the team. And it's because of the teamwork, the technical team, sales team, account team, and the dispatch team. And of course the support of the management team. And of course the sir, we thanks to you also for supporting us. Thank you all. Great. Wonderful, Piyush. Any one of you who would like to start? Yeah, congrats to everybody, the team, sir, everybody. It's a great achievement and what we had planned, and we have achieved this at the end of the year. It was all due to the continuous focus, what focus we had, the target we set and the focus we kept. Every review meetings, wherever there was some problems or something, so we used to discuss and we used to overcome those problems, and we have been able to keep our focus throughout the year. Thanks to the whole team, and it's a total team effort which has done this. Thank you all. And from the directors team now, finally, Sanjay bhai, and then later we will have some of you also contribute. Sir, I don't have any word to say, but thank you to all the Optilink team, and thank you to Piyush, Vikram, and thank you very much to Amrish sir also. Thanks. Fantastic. आप बहुत ज़्यादा डे टू डे इन्वॉल्व इस प्रोसेस में आप भी थे एज मच एज पीयूष एंड विक्रम तो जब नाव मध्य दरिये में पहुंच गई थी बीच दरिये में उस वक्त तूफान वगैरह कुछ आए क्या या ऐसी कोई दिक्कतें आई जिससे आपको लगता था कि थोड़ा अपना टास्क या चैलेंज डिफिकल्ट हो जाएगा? नहीं सर, इनिशियली तो हम लोग जो मैं और नेचर में सोच रहे थे कि ये टास्क तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन जो इम्पॉसिबल वर्ड है उसके अंदर ही लिखा है आई एम पॉसिबल. सो फिर हमने सोचा कि ये टास्क इम्पॉसिबल नहीं है, वी विल ट्राई एंड वी विल अचीव दिस टारगेट. फैंटास्टिक. Mr. Atit Kala, the head of national sales, Optilink, to share his experience, because ultimately it all boils down to sales first. Of course, you have to have products, but it's a very competitive wholesale market environment there. And if you don't close the deal, when the deal is right, you know that order goes to somebody else, and it's not that we are the only company. So you and your team have done a phenomenal job. First of all, let's give them a big hand. Entire sales team, development, sales team, all people involved in the sales team. Wow. Okay, and over to Atit. Please share your journey. Yeah, actually,
after all these Thanksgiving process, with all due respects to our directors and Amrish sir, of course, that's true. Like when we had started, it's been stated by our directors as well. When we had started, it was quite impossible altogether. And if you look at, like, when I was discussing apart from my directors, and I was discussing with my team as well, like Lalit, Naveen, and so like, sir, yaar, hum log ka target is 15 lakhs and his target is 20 lakhs. How can we cover 50 lakhs? It's highly impossible. And yes, if you look at the figures, Lalit, if you look at, like, when we were discussing in the initially of the year, like you said कि नहीं यार मैं अभी 20 लाख कर रहा हूँ, 50 लाख कैसे करूँगा? Per month. Like same with the Naveen as well. But if you look at the figures, yes, you guys had done it. So it just required a confidence in yourself as well. So one is the confidence in ourselves. Second is, yes, of course, it's all together. It's a team effort. I would like to give special teams to technical teams who had always with us, to any of our customers. And So, yes, technical team, please raise your hand. Yes. And Chintan is Chintan is not missing. there. Vinit is there. Rakesh is there. Hands up. Abhishek is there. Right, and Piyush is in China. And Vikram is also in China. So big hand for the technical team. Was altogether impossible to close down some difficult deals which we had done it. So and of course there was a tremendous support from our directors, Vikram bhai, Piyush bhai, of course Devgan sir, Sanjay sir, who has always been inspiring for us, and Gulab bhai as well. And thank you very much, Abhi sir. So we had learned a lot from you, and yes, of course, for the future as well, we'll be requiring your support, sir. Thank you, sir. Firstly, I would like to congratulate everybody, team Optilink, team iBuildings, directors, management, everybody. Basically, it's a process. Like everything is interlinked. You have accounts, you have dispatch team, you have sales team, you have development team, and you have technical team. So all are interconnected, and hence from the very whatever target we started with and we have achieved, it's a milestone, obviously. And likewise, it's just a simple example. कार के 4 पहिए सब लोग हैं, एक भी पहिया अगर पंचर होता है तो it's difficult to move ahead. So the pedals or the pedal of the car, we have management team, right pedal on the right time, we have excelled very well. Congratulations everybody. Cheers. From the customer support perspective, what were the key challenges you faced and how did you overcome those? Since every customer needs support on very priority basis, we just feel that challenge is every customer wants the personal attention on that particular hour. Okay, so only thing is what we need to buy the time of the customer, which is very difficult. Okay, so that's a challenge. We have to accept it. We have to deal with the same. So we tactfully handle, because we have a team of 5 to 6 people in technical. So we just escalate our work, divide our work, and everybody handles the customer individually. Wonderful. हेलो एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सबको. सबने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, स्पेशली मी. कीज टाइट करते हुए भी ये अचीव किया है, वो बहुत बड़ी बात है. और नॉट ओनली अचीव किया है, हमने खुद को इम्प्रूव भी बहुत किया है. क्या बात है. जो पहले हम नहीं कर सकते थे वो अब हम कर सकते हैं. आगे कंटिन्यू करेंगे, इससे भी बड़ा टारगेट अचीव. आपको अपने आप को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लिफ्ट करना पड़ा होगा. ड्यूरिंग द ईयर आपने ERP और ज्यादा यूज करना शुरू किया, राइट? तो उससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस, और आपने फिर वो चैलेंजेस को कैसे फेस किए?
सर वो इतनी थोड़ी देर में बताने वाली बात नहीं है। फिर भी सबसे पहले तो मैंने फोकस को यूटिलाइज करना स्टार्ट किया। ERP system. Previously we were dumping the data, but now I am learning how to use focus in our business. तो अभी धीरे धीरे सीख भी रहे हैं, उसके जो भी क्राइटेरियाज हैं वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पर इस बार स्पेशली जो टारगेट अचीव किया है उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू माय मैनेजमेंट कि उन्होंने हमको फ्रीडम दिया कि आप क्रेडिट लिमिट सेट करो, उसके हिसाब से चलो। तो कहीं कहीं पे हमारे पास ये पावर भी था कि हम सेल को रोक सके। पर ऑन द अदर साइड सेल्स टीम भी कि हमारे इतने रोकने पर भी उन्होंने अचीव करके दिखाया। During the start when we were given this target कि हम लोग को इतना अचीव करना है, तो I was personally very tensed कि मतलब मेरा रिकवरी टारगेट रहेगा तो मैं कैसे करूँगा, सब लोगों के साथ में मतलब कैसे पीछे पड़ के करूँगा। बट सेल्स टीम ने इक्वली इतना सपोर्ट किया हम लोगों को कि उन लोग सामने से कॉल करके रिकवरी टारगेट्स सर कितना और निकालना है या किसका और ओवरड्यू है या किसी का मतलब लिमिट से बाहर जा रहा है कि क्या है या किसी से डॉक्यूमेंट्स मंगवाना है कि क्या है। मतलब उन्होंने जो सपोर्ट किया हम लोगों को, अतीत सर, नवीन, ललित, इवन सरला मैडम ने भी मतलब गाइड किया कि नहीं तुझे मतलब उनका एक स्टेटमेंट है मुझे हमेशा कि तुझे पत्थर तोड़ के पानी निकालना है करके, बिकॉज यू हैव टू डू रिकवरी। सेल्स सब कोई भी कर सकता है बट रिकवरी करना है फोकस रखा कि नहीं तुझे ये करना ही है, तुझे ये करना ही है। एंड दैट वाज द की रीजन कि मतलब एक अपनी कंपनी सेल्स भी कर पाई एंड साथ में रिकवरी ग्रोथ भी हमारा अच्छा खासा हो गया। वंडरफुल। वन मोर सेंटेंस, मैंने इसको जब ज्वाइन किया था तो नीरव माय कलीग कि पत्थर तोड़ के पानी निकालना है, ऐसे मैंने इसको बोला था और रिमाइंडर्स भी बहुत दिए थे। पर जिस तरीके से इसने काम किया है, तो वो जो डिफिकल्ट टास्क जो थोड़ी देर पहले जयेश सर ने बताया कि हमारे लिए रिकवरी करना बहुत मुश्किल काम है, जो नीरव ने करके दिखाया। हम पहले नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ मल्टीपल टास्किंग एंड ऑल, बट ही इज फुल्ली डेडिकेटेड टू रिकवरी। तो फॉलो बहुत अच्छी तरह कैसे करता है। कभी कभी मैं थोड़ा हाइपर हो जाती हूँ तो मुझे भी कूल डाउन कर देता है, और कभी वो अटक जाता है तो मुझे उसको प्रेशराइज भी करना पड़ता है, हार्ड हो जाना पड़ता है, बट ही इज डूइंग वेरी वेल। आपको मिला आपकी कैरियर के लिए और आपकी स्किल के लिए कि सबको साथ में लेकर ये करता है और इतना बढ़िया स्माइल के साथ। Thank you. I think this is very very appreciable. Once again a very big hand for Riya. And जिसको कहते हैं ना कि जो some of the best performers होते हैं उनको लास्ट में रखा जाता है आने के लिए, because they steal the show. तो वैसे मैं कहूँगा कि HR डिपार्टमेंट की हेड को मैं रिकग्नाइज करता हूँ कि कंपनी में पूरा टीम वर्क की भावना लाने का काम, HR की पॉलिसीज और प्रोसेसेस डेवलप करने का काम, उसके बाद में इम्प्लीमेंट करने का काम, एंड कंटिन्यूअस मेंटोरिंग, गाइडिंग, taking the challenges and the negatives from people, turning it into positive, cooling them down, etc. And for various other things, let us give a very very big hand to our सबसे नंबर वन काम जो स्नेहल ने किया है, जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, उसके 12 स्टेप्स हैं, राइट फ्रॉम मिशन, वैल्यूज, विजन से लेके और भी जो जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना, जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल सेट्स
एटीट्यूडिनल स्किल्स क्या है रिक्वायर्ड एंड फंक्शनल स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है, ये सब तैयार करना, और फिर उसी के हिसाब से रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट के बाद इंडक्शन करना. सो वेरियस अदर थिंग्स दैट शी हैज डन हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट. नॉर्मली क्या है, सेल्स का परफॉर्मेंस तुरंत दिखता है, सर्विस का परफॉर्मेंस तुरंत दिखता है, अकाउंट्स का परफॉर्मेंस वैसे नहीं दिखता पर रिकवरी का परफॉर्मेंस दिखता है. लेकिन एचआर इज अ थैंकलेस जॉब, उसका परफॉर्मेंस दिखता नहीं है. जब बुरा होता है तो लोग एचआर को याद करते हैं, अच्छा जब कुछ होता है तो वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है कि अच्छा होता है तो मेरी वजह से हो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं. ये नहीं एक्नॉलेज करते कि एचआर ने बहुत कंट्रीब्यूट किया इसके लिए. तो स्नेहल जी, आप कुछ बात करेंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग दिस? एक्चुअली सब लोगों ने इतना कुछ बोल दिया है और मेरे लिए बचा ही नहीं है कुछ नहीं, आप बोलने के फिर लिए. डजंट मैटर, दूसरों का एडिट कर लेंगे, आपका नहीं करेंगे. बट एज जब विनीत ने बोला जैसे वी आर टायर्स, बट आई कैन थिंक ऑफ कि वी हैव ऑल द टायर्स, और वो ऑर्गेनाइजेशन ड्राइव करने के लिए जो गाइडेंस चाहिए था, तो वी हैव पर्सनालिटी लाइक अमरीश सर विद अस, सो दैट इज अ मच फॉर्चुनेट पार्ट फॉर अस. ड्राइव वो कर रहे थे, साथ में सब लोग उतने ही एनर्जी से चल रहे थे. ऊपर से जब फोर्स हमारे पास आता था तब जाके हम मोटिवेट होके हमारे टीम के पास पहुंचते थे, वो मोटिवेशन उनको देने के लिए. बट I will be thankful to Amrish sir, all my directors, क्योंकि again one more thing what I have observed here is एक जो यहाँ का कल्चर है, मतलब मुझे आज भी नहीं लगता है कि इट्स बीन जस्ट अ ईयर आई एम हियर, आई एम वर्किंग लाइक मैं कितने सालों से यहाँ पे हूँ, जितना इतना अच्छा नाता रिलेशनशिप से यहाँ पे बन गई है सबके साथ. इट इज मोर ऑफ नॉट प्रोफेशनल रिलेशंस है, बट इट इज मोर ऑफ फैमिली नाउ, ऑफ डीलिंग फैमिली है ये. और जिसमें नया करने के लिए हमेशा स्कोप मुझे डायरेक्टर्स ने दिया. जो भी एचआर रिलेटेड कुछ भी सर के पास लेके जाती थी, सर कैन वी डू दिस, कैन वी डू दैट, बट सर डायरेक्टर्स का गाइडेंस वाज ऑलवेज देयर कि यस वी कैन डू दैट, वी कैन डू दिस. एज वेल एज जब जैसे कुछ सेल्स में इम्प्लीमेंट करना है, कुछ टेक्निकल या सारे डिपार्टमेंट्स के लिए करना था, एम्प्लॉयज का सपोर्ट वाज ऑलवेज देयर. अतीत सर के पास कितनी बार गई थी, उनका गाइडेंस मुझे मिला है. बहुत सारी सिस्टम्स पता नहीं थी जो सरला मैम ने बताई गई. बट येस, एज अमरीश सर सेड, एचआर तो बैकएंड सपोर्ट के लिए काम करता है, बट दीज ऑल आर आवर फ्रंट फेट्स, और मतलब बताने का काम कर रही हूँ, वो कर रहे हैं, इसके लिए वी ऑल आर ग्रोइंग अप. एंड थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस, चीयर्स अगेन. नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए हमें और भी काफी फासला तय करना है. हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, तो फाउंडेशन बिल्डिंग के कुछ काम इस साल में और लिए जाएंगे इन द ईयर 16-17. और वो फाउंडेशन बिल्डिंग का काम सही हो, उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा. साथ साथ में ऑफ कोर्स हर डिपार्टमेंट अपने अपना काम तो करेंगे ही. सेल्स वगैरह का, सेल्स डिपार्टमेंट कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम, कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, न्यू प्रोडक्ट्स, इनोवेशन, एटसेट्रा एंड सो ऑन. 16-17 इस साल के लिए आपकी कंपनी ने फिर से काफी स्ट्रॉन्ग टारगेट ली है, और वो टारगेट ली परसेंटेज ग्रोथ की. दिस ईयर हम लोग ने 50% ग्रोथ का टारगेट लिया हुआ है. So, वैसे सोचा जाए तो लास्ट ईयर से कम ही है. वैसे देखा जाए तो लास्ट ईयर से कम ही है, लेकिन अभी हायर बेस पे है. सो आपको कम से कम मार्च में इम्पॉसिबल टारगेट अचीव करने के बाद, मतलब पूरे साल का 100% ग्रोथ अचीव करने के बाद, अब तो आपके मन में कोई शक नहीं होगा कि इस साल की जो टारगेट ली है 16-17 की, वो आप पूरा कर ही पाएंगे. हालांकि वो तो क्रॉस ही कर जाएंगे, मुझे शक नहीं है आप लोगों में. ईच मेंबर ऑफ द टीम, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को जरा भी शक होगा कि कंपनी 16-17 के जो टारगेट लिए हुए हैं उसको पूरा कर पाएगी या नहीं. एब्सोल्युटली इट्स अ डन डील एज फार एज आई एम कंसर्न्ड.
जो फोकस कुछ फाउंडेशंस के काम पर करना है तो वो है मेनली ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के जो 12 स्टेप्स है उसमें से कुछ स्टेप्स स्ट्रांगली करने जरूरी है। तो इस साल में मेरा फोकस उसके ऊपर जाएगा एंड आई विल वर्क वेरी क्लोजली थ्रू द SCRMs on helping you to implement each one of the steps with more dedication and more focus, with more support from everybody. क्योंकि जितना ज्यादा इस पे काम करेंगे उतनी ही ज्यादा ऊंची इमारत हम खड़ी कर पाएंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन का काम है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, एंड अ बिल्डिंग कैन बी ओनली एज टॉल एज द फाउंडेशन कैन सपोर्ट इट। अगर फाउंडेशन वीक है उसके ऊपर आप बड़ी बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो वो कभी भी गिर सकती है। हमें ये एक फोकस है। दूसरा फोकस होगा इस साल का कि फ्रॉम पीपल ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन वी वांट टू बिकम अ प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। सो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस और उसका इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी लास्ट ईयर में काफी कुछ काम हुआ है, उसके ऊपर प्रोसेस डेवलपमेंट पे भी काम हुआ है और इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम हुआ है, और इस साल में और ज्यादा फोकस उसके ऊपर होगा, सो दैट उसके बाद के साल में अगेन हमको 100% ग्रोथ का टारगेट लेना है तो आप ले सकते हैं। और तीसरा फोकस होगा ब्रांड बिल्डिंग पे। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हमारी कंपनी ने अदर देन थ्रू द सेल्स टीम एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम हार्डली कुछ किया है except the exhibitions, but there is much more that can be done on the front of brand building, and we will be using a lot of low cost techniques for building your brand. इसी के साथ once again for achieving your 100% target and exceeding it, very very big hand to all of you. For the year 16-17, and एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कंपनी जब नेक्स्ट लेवल पे जाती है तो वो जर्नी में कंपनी के साथ जुड़े हुए जो भी एम्प्लॉइज होते हैं, लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, उनका भी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लर्निंग्स मिलता है उनको खुद को अपनी कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। वो हमेशा हमेशा लाइफ टाइम के लिए वो लर्निंग आपको काम में आएगा। सेकेंडली, कंपनी जब नेक्स्ट लेवल पे जाती है तो जो कंट्रीब्यूट कर सकती है आप लोगों के ग्रोथ के लिए वो भी बढ़ता जाता है। सो वन ऑफ द की एजेंडाज विद HR विल बी ट्रेनिंग एंड मोर ट्रेनिंग एंड हेल्पिंग लिफ्ट एवरीवन्स प्रोफाइल। उनके स्किल सेट्स को इतना मजबूत बनाना है और हर व्यक्ति के लिए आपको इस साल में उनका रोड मैप डेवलप करना है कि कैसे कैसे वो ग्रो हो सकते हैं, किस तरह से प्रमोशन मिल सकते हैं, कितने साल में क्या गोल टारगेट कर सकते हैं, और सैलरी पैकेज भी उसके साथ कितने बढ़ सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये आपने देखा होगा जरूर कि जब भी कोई कंपनी छोटी से बड़ी होती है तो कंपनी के साथ जुड़े हुए सभी लोगों का और उनके फैमिलीज का ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली होता है। सेल्स टीम ऐसा है कि आप जब फ्रंट पे खेलते हो तो पीछे आपके जो कोऑर्डिनेशन वाले लोग हैं, आपका जितना ज्यादा ट्यूनिंग उनके साथ कंप्लीटली आप प्लग इन रहोगे, कंपनी के बैकएंड सिस्टम्स के साथ आप प्लग इन रहोगे तो आपको वहां से बहुत पावर मिलेगा, आपका फ्रंट एंड परफॉर्मेंस अच्छा हो पाएगा। लेकिन अगर प्लग निकाल दोगे तो पावर आना बंद हो जाएगा या झटके से आएगा, कभी डालोगे कभी निकालोगे, डालोगे निकालोगे। बेस्ट इज no matter what in your department, whether you like certain things, whether you do not like certain things, whether you want to improve certain things, suggestion आप कर सकते हो, but
जुड़े रहना चाहिए हमें। Yeah. इसी हमने Yeah. बहुत पहले तय किया था कि जो कुछ भी काम करना है प्रेशर के साथ, पॉजिटिव प्रेशर के साथ, फन एंड मस्ती के साथ करना है। नेगेटिव प्रेशर में कभी उसको कन्वर्ट नहीं होने देना है। तो ये फन एंड मस्ती आप चालू ही रखना। वंस अगेन बिग हैंड फॉर three cheers for the Optilink and iBuilding team. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! And this is for the company achieving 100% growth target that it had taken up compared to the last year. The turnover locked in the financial year 15-16 has grown by over 100%. iBuildings will share कि how they will be contributing to the company's growth. In the year 15-16 से जो कुछ भी सीखा उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे 16-17 में और ज्यादा से ज्यादा हिट्स मतलब 4s and 6s आप स्कोर करेंगे। 16-17 में आप किस तरह से करेंगे उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। एंड विल स्टार्ट विद द लीडर ऑफ द iBuilding टीम, रोमा। Like I've joined the mid of the year, but yeah, from the time I have learned whatever from the mistakes we have done and whatever we have done, we will coordinate more with among our team members. Like we should know what my team is doing, what I am doing, so that like there should not be conflict. Everybody should know what other person is doing. Otherwise, so that like wherever we go, we can talk about each other's the companies what we are handling also. And moreover, like it's a company's work, so we will never point fingers on the other departments because it's a company. It's not just a department. So we have to coordinate and we have to work and we have to reach to the target. Very nice, Roma. इस तरह का रिजल्ट आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आप ऑप्टिलिंक के टीम वर्क से कुछ ले सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं और सीख सकते हैं। आपने देखा होगा कि टीम में कुछ पुराने भी लोग थे, नए लोग भी आए। जनरली ऐसा होता है कि जब नए लोग आते हैं तो थोड़ा सा पुराने और नए के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन वो HR के जरिए HR becomes the bridge एंड उस कॉन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव चैनल्स में कन्वर्ट करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो आपके डिपार्टमेंट में भी हो सकता है कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एरियाज में नए लोग भी आएंगे iBuildings के लिए। और इट इज द टीम वर्क दैट मेक्स द ड्रीम वर्क। कंपनी के मिशन, विजन, वैल्यूज के साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहना है, उनको इंटरनलाइज करना है और अपने जो टारगेट्स हैं उसके ऊपर सिंगल माइंडेड फोकस के साथ टारगेट्स को पूरा करने में लगना है और यही आपका गोल होना चाहिए। और ऑप्टिलिंक की टीम ने, जैसे कि दोनों डायरेक्टर्स ने बताया, एक ने बताया कि इम्पॉसिबल लगता था जब लास्ट ईयर ये टारगेट लिया था इन्होंने अप्रैल मंथ में या मार्च एंड में डिस्कस किया था फॉर द टारगेट फॉर 15-16। नहीं, we seated on first week of April। और जब ग्रोथ टारगेट 100%, ये चैलेंज मैंने दिया था टीम को क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि 100% अगर कहेंगे तो 100% तक ले जा पाएंगे टीम को। तो उस वक्त इन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल लगता था, इन्होंने अभी कहा, उस वक्त भी कहा था, और इन्होंने कहा कि क्वाइट डिफिकल्ट लगता था वो चैलेंज, लेकिन इन्होंने पूरा किया। और ऐसा भी नहीं था कि वो टारगेट स्मॉल बेस पे था, ऑलरेडी एक हाई बेस उनका हो चुका था बिकॉज प्रीवियस ईयर ग्रोथ वाज 50%। वो बड़े नंबर पे 100% मतलब डबल इन अ सिंगल ईयर करना है। पर जो ठान लिया था वो उन्होंने पूरा किया बिकॉज सभी लोग कंपनी के ऑप्टिलिंक टीम के प्लग्ड इन थे, कंपनी के वॉल सॉकेट से कंटिन्यूअसली पावर ड्रॉ कर रहे थे, हमारी ACRM मीटिंग्स का मैक्सिमम फायदा ले रहे हैं। तो विश्वास रखिए iBuilding के ऊपर और iBuilding की टीम के ऊपर।
और पेशेंस भी रखिए, क्योंकि मैंगो का आपको ट्री डाल के मैंगो खाना है तो सीडिंग करने के बाद उसको कंटिन्यूअसली वाटरिंग करने के बाद कितने साल के बाद में मिलता है मैंगो? 6 to 7 6 to 7 years के बाद मिलता है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको टारगेट 6 साल बाद कंप्लीट कीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट कंपनी को बोल रहा हूँ कि टीम के साथ पेशेंस रखिए एंड व्हाटएवर लर्निंग्स दे हैव, एज रोमा सेड, पिछले 1 साल में जो भी सीखा है, तो अभी इतना क्लियरली टारगेटेड मार्केट के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको रिजल्ट मिलेगा। यू हैव टू फिश इन अ लेक वेयर देयर आर द काइंड ऑफ फिशेस यू वांट। अगर वो लेक के बदले में किसी और लेक में आप फिश करेंगे तो वहां से कितनी देर भी आपको कांटा लगा के रखेंगे, लेकिन वो टाइप का फिश नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। की टू योर सक्सेस is not going to be simply the technical products and the completeness of the products and so on. This is an evolving division. But key to your success will be sharply being able to focus on the right type of target market. And उस market को क्या products चाहिए वो feedback continuously आप देते रहेंगे, technical team वो products develop करेगी। So once again, thanks for your time guys. You guys rock, literally.